Yes, now it started. So advantage in making a rough graph of a given function is that we come to know where the graph of the function is crossing the x-axis. And in this case, we see that between x is equal to -2 and x is equal to -1.5, it is crossing x-axis. Then it is crossing x-axis exactly at -1. And there is another point between 1 and 2 where the graph is crossing the x-axis. Now, why these points are important? These points are important because these are the points where for x value, fx comes out to be 0, that is y is 0. And this is what the equation requires us. We have to find that value of x which makes this equation valid. That means this function should have value 0. So this function has value 0 at this point, at this point, at this point. And when an equation cannot be solved using common mathematical methods, like this equation can be solved. मैंने बताया था last time कि factorization से आपको इसका एक root मिल जाएगा x is equal to -1, and we see that the graph is crossing at x is equal to -1. So we are looking for x values that makes this equation satisfied, and these x values are the roots of this equation. A cubic equation has to have at most 3 roots, so these are the 3 roots. एक का हमें exactly पता है, बाकी 2 का हमें exactly नहीं पता. Now, what's the significance of this if you are not able to make the graph? We note that when a graph crosses the x-axis at this point, that means this point x is equal to is the root, and we look at the behavior of the function around this root. On the left side, y values are negative. On the right side, they are positive. At this root, left side, y values are positive. On the right, they are negative. At this root, y values are negative on the left and positive on the right. And I have made this small table कि x is equal to 0 पे -3 है y की value, x is equal to 1 पे -4 है, x is equal to 3 है. So ये जो property हमें नजर आ रही है geometrically कि around the root, on one side the function has one sign, and on the other side the function has another sign. And we say that this is change of sign. And this change of sign rule is basically obtained from study of mathematics. So whatever I just described is written here as well. And the mathematics provides us this theorem, which actually gives us the rule that I just called change of sign rule. If a function f is continuous, in the equation fx is equal to 0, we have a function. If that function is continuous over an interval a to b, and the sign of fa and fb are opposite, on one side it is one sign, on the other side it is other sign, the product of the function values at the endpoint of the intervals has to be negative. This is the indication that change of sign is taking place. Then there exists at least one point C between A and B where the function value will be 0. That means fx is equal to 0 ka root x is equal to C hoga. So this is known as change of sign rule. And when we are not able to make the graph, we just arbitrarily calculate some function values to find out where the change of sign is obtained. For any equation fx is equal to 0, we have a root between x is equal to a and x is equal to b if the signs of fa and fb are opposite. We say that, and this condition is used only when the given function in the equation fx equal to 0 is continuous. If it is not continuous, we can't say anything about that. So this property, what we have just discussed for fx is equal to 0, it is used to locate a root of the equation. Call it the rule of change of sign. And this rule is useful in cases when it is difficult to visualize the graph of the function involved. So whenever
we are not able to visualize a graph, we will use this property. Let us look at this example. We are asked to locate a positive root of the equation e power x minus 3x is equal to 0. Now, this kind of equation is very difficult to solve using any mathematical language, though it is relatively easy. E power x is equal to 3x, and then x is equal to ln 3x. X is equal to ln 3x. In both forms, exponential form or logarithmic form, it's not easy to solve. So what we do is choose some x values, 0, 1, 2, 3, 4, 5, and then calculate e power x minus. Now, how do I calculate this? And I suggested that we have to calculate this using an Excel sheet. And I now move towards Excel sheet and demonstrate how this change of sign is calculated. So our x and fx. You have to learn this quickly. I say 0, 1, 2, 3, 4, etc. And I now fill this cell with the function. What was the function? Can you see the Excel sheet? Yes, sir. Okay, what was the function? The function was e power x. So Excel में e power x लिखा जाता है exp bracket x. Now where is the value of x? Value of x in the cell B4. So instead of writing down x, we write here B4 where the x value is stored. What else was there in the function? Minus 3x. So 3 star x and x value is contained in the cell B4. And we see that we get this value. Now this cell is filled with a formula which gives you value of y for x is equal to 0. We want value of y for x is equal to 1. We want a value of y x is equal to 2. We just take the cursor here, hold it by left clicking, and drag it down to copy. The formula is copied in all these cells. And we see change of sign where? Between 0 and 1, because at 0, y is 1, at 1, y is negative, at 2, y is again positive. So one of the root is between 0 and 1, and one is between 1 and 2. So this is the way for any arbitrary function, हम ये मालूम कर सकते हैं कि किन x values पर change of sign मिल रहा है. Okay, so we have located a root, in fact, two roots of the given equation, one between 0 and 1, the other between 1 and 2. For experimentation, you can go considering minus 1, minus 2, minus 3, and we see that on negative side, we don't have a change of sign. So the question asked us to locate a positive root of this equation. I have switched the screen to Word again, and I hope you can see the screen. Word screen nazar aa rahi hai? Hello? Can you people see the Word screen again? I'm not able to listen to any response. Sir, aa rahi hai nazar. That's good. So we have located a root of this equation, 1 between 0 and 1, because there is change of sign for x equal to 0 and x equal to 1. Change of sign is what? In the function value, that is y value. And there is another change of sign between 1 and 2, so another root is there between this and this. No, note that if an interval contains a root of an equation of x equal to 0,
हम एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं कि रूट इज ब्रैकेटेड बिटवीन ए एंड बी। किताब पढ़ोगे तो वहां पे भी तुम्हें ये लफ्ज मिलेगा और लिटरेचर में ये लफ्ज मिलेगा कि इफ एन इंटरवल कंटेन्स अ रूट, फॉर एग्जांपल इंटरवल ए बी कंटेन्स अ रूट, हम कहते हैं द इंटरवल ए बी brackets a root. So in the above example, one root is bracketed between 0 and 1 and another is bracketed between 1 and 2. Let us see another example where I have made the function a little more complicated. 3x plus sine x minus e power x is equal to 0, and it becomes more and more difficult to solve such equations using our mathematical knowledge. But we go for change of sign exploration. हम x is equal to value वही 0 1 2 3 किया हमने और इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की। अब मैं एक्सेल शीट में वापस नहीं जा रहा, ये जो तीन चार वैल्यूज कैलकुलेट की हैं तुम खुद प्रैक्टिस के लिए एक्सेल शीट पर इन वैल्यूज को कैलकुलेट करो। मैंने तुम्हें बता दिया कि एक्सेल शीट में हमने फंक्शन कैसे फीड करना है। अरे इसके अंदर साइन आ गया, चलो कर देता हूँ एक दफा और। So x fx 0 1 2 3 4, and what was the function? Three x sine x minus e power x. So is equal to 3x 3 star x. The value of x is now in what cell? H5. It is in G5. 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 So G5 plus sine as it is G5 minus what was the other part? E power? E power x simply. Minus exp, because it is e power, so e power के लिए function exp इस्तेमाल होता है एक्सेल में, and G5 again. So at x equal to 0, it has a -1 value, and then let us copy drag, and we see change of sign between 0 and 1, then between 1 and 2, and again it's a similar example, and we have change of sign at two places. So I hope now you should be comfortable with the process of locating the root of an equation. So this topic is completed. रात को जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम था मेरा, जिसकी वजह से मैं बुक अपलोड नहीं कर सका ग्रुप पे. But I told you that how many of you are at campus? Are you attending class from home, or some of you are at campus? No response? Home, sir. From home. घर पे हो? Home, sir. हाँ? From home, sir. It's all right. मैं तो सिर्फ इस पे से पूछ रहा था कि अगर कोई कैंपस पे है तो वो जरा अली की दुकान से पता करे कि ये जो किताब मैंने रिकमेंड की है जिरार्ड एंड व्हीटली, उसका न्यूज़पेपर प्रिंट उसके पास है कि नहीं है. होना चाहिए उसके सर पास. एक बंदा कैंपस पे है, उसको बोलो पता करे. जी सर, बोल देता हूँ. हाँ, अगर मिल जाए तो उसको जो जो लेना चाहता है उसको बता दे, वो उतने कॉपीज मंगवा लेगा. और नहीं लेना चाहता तो मैं अपलोड तो कर ही दूंगा, लेकिन मेरी तरह मैं ख्याल तुम लोगों को मुश्किल होती होगी कंप्यूटर पे पढ़ने में. तो अगर किताब हाथ में होती है तो ज़रा इजी रेफरेंस रहता है, क्योंकि जो पीडीएफ पढ़ते हैं हम तो स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बुक बड़ा मुश्किल होता है.
जबकि अगर हाथ में किताब है तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पीछे मुड़ की टेक्निक देखना है तो देख ली, and so on and so forth. So it's easier to study the book. Now I'm moving on to the first method of solving nonlinear equation. And where do I find that? I think it is here. Let me tell, let me know, are you able to see the word sheet with the heading of bisection method or interval halving method? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So we now come across the first method that allows us to find out a root of given equation, fx is equal to 0, to what degree, to what accuracy. During my introduction to the subject numerical analysis, I told you that the beauty of numerical methods is that you can get as accurate result as you want. Sometimes we are able to find exact results. Others, we are not able to find exact results, especially when a the number as a result is an irrational number. तो irrational number कभी accurately मिल ही नहीं सकता. क्यों नहीं मिल सकता? I hope from your calculus study, you remember that irrational numbers are that which has an infinite representation in decimal form without any recurring pattern. तो अगर किसी इक्वेशन का रूट इरेशनल आ रहा है तो वो तो मैं एक्यूरेट ले ही नहीं सकता. हाँ, मैं एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकता हूँ. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स कि आई कैन इंक्रीज द एक्यूरेसी एज मच एज पॉसिबल. जो मेथड फास्टर होंगे 10, 15, 20 डेसिमल तक रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, 5, 6, 7 इटरेशंस में आ जाएगा. जो मेथड स्लोअर होंगे उनमें 5, 6 डेसिमल की एक्यूरेसी भी हो सकता है, 20, 25 इटरेशन मांगे. So we will learn while learning these methods कि कहाँ पे क्या होता है. The bisection method, the idea is that if we have a root between say 1 and 2, तो root या तो 1 के करीब से गुजर रहा होगा या 2 के करीब से गुजर रहा होगा. That means ग्राफ x एक्सिस को या तो 1 के करीब से कट कर रहा होगा या 2 के, लेकिन 1 और 2 के दरमियान कहीं से कट कर रहा है. अगर मैं इंटरवल 1 और 2 को आधा कर दूं तो अब या तो लेफ्ट हाफ में से गुजर रहा होगा या राइट हाफ में से गुजर रहा होगा. अगर राइट हाफ में से गुजर रहा है तो उसको फिर आधा कर दूं. आई विल ज्योमेट्रिकली डेमोन्स्ट्रेट दैट. अभी तो मैं जुबानी बात कर रहा हूँ. तो मैं इंटरवल को आधा करता चला जाऊँ. दैट इज व्हाई इंटरवल हाविंग मेथड भी इसका नाम है. तो ये कैसे होता है साहब? ये उसी प्रॉपर्टी की वजह से होता है जब भी हमने मैथमेटिकल थ्योरम डिस्कस की थी. इस थ्योरम को इस्तेमाल करके हम अच्छा, whenever you are in chat has to say something to me, तो अपना हाथ का इशारा कर दिया कीजिए ताकि मैं चैट देख लूं, अदरवाइज मैं चैट नहीं देखता. अच्छा जी, टू सॉल्व एनी नॉन लीनियर इक्वेशन हम इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे. किस तरह से इस्तेमाल करेंगे सर एक बार रिपीट कर दें इस चीज को? I just started introducing bisection method or interval halving method. हमने कहा कि अगर interval ए बी में रूट एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, क्योंकि एफ ए और एफ बी के साइन ऑपोजिट हैं तो रूट इन बिटवीन कहीं होगा. अब या तो रूट ए के करीब से गुजर रहा होगा या बी के करीब से गुजर रहा होगा. अगर मैं इस इंटरवल को आधा कर दूं, ए से लेके a प्लस बी बाई 2 और a प्लस बी बाई 2 से लेके b,
तो अब रूट या तो राइट हाफ से गुजर रहा होगा या लेफ्ट हाफ से गुजर रहा होगा। अगर राइट हाफ से गुजर रहा है तो उसको फर्दर आधा कर दूं। तो अब रूट इस फर्दर हाफ के अंदर जो आपके क्वार्टर हो चुके हैं, इनमें से लेफ्ट क्वार्टर में से गुजरेगा या राइट क्वार्टर में से गुजरेगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये बेसिक आइडिया है बिहाइंड दिस मेथड। टू सॉल्व एनी नॉन लीनियर इक्वेशन where the function is continuous over an interval AB that contains a root, we find midpoint. अच्छा, मिड पॉइंट मालूम करने का एक तो सीधा सा तरीका जो आप इस्तेमाल करते रहे, a+b होल डिवाइडेड बाई 2, और एक है a प्लस डिफरेंस ऑफ b एंड a डिवाइडेड बाई 2। वंस वी हैव गॉट द मिड पॉइंट, अब हमारे पास दो इंटरवल हो गए, a से लेके m तक और m से लेके b तक। a और m के दरमियान अगर रूट है तो fa इंटू एफ एम नेगेटिव आएगा, रूट लाइज बिटवीन a एंड m। और अगर m और b के दरमियान रूट है तो एफ एम इंटू एफ बी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है रूट। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि हम इत्तेफाक से जो मिड पॉइंट कैलकुलेट करें वहां पे एफ एम की वैल्यू 0 आ जाए। अगर ऐसा होता है तो ये मिड पॉइंट ही रूट है, और ये एग्जैक्ट रूट मालूम करने वाला केस है विच इज सेल्डम अचीव्ड। बहुत शायद नाज़िर ऐसा होता है कि हम एग्जैक्ट रूट पर पहुंचे। सो इन केस द रूट लाइज इन द इंटरवल, हम सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अल्लाह अकबर, फिर कोई प्रॉब्लम हो गया? हेलो, आखिरी 2-3 जुमले में आपकी आवाज बहुत हल्की प्रॉब्लम आ कोई रही है। मसला नहीं है, वो आवाज कम आपका होती है। माइक नीचे चला जाता है। अच्छा, मैं मुंह के करीब रखने की कोशिश करता हूँ लेकिन बाहर। अच्छा, मेरी आवाज़ तो कभी कभी कम हो जाती है, लेकिन तस्वीर तो साफ आ रही है ना ये वाली वर्डशीट की। जी सर, जी अगर सर, कोई जी चीज़ सर। किसी वक्त कोई चीज़ मेरे सुनने में मिस हो जाए तो ये कंप्लीट लिखा हुआ है जो कुछ मैं बोल रहा हूँ। हाँ, उर्दू नहीं लिखी हुई बस। तो ये फाइल जो है मैं शेयर करूँगा आपसे, बल्कि ये मैं रिसोर्सेज में डाल चुका हूँ LMS में। ठीक है, तो वहां से डाउनलोड करके तुम ये पढ़ सकते हो। सो वट एवर आई सर जस्ट इससे पहले वाली जो फाइल थी, जी जी, इससे पहले वाली जो फाइल थी वो वाली एलएमएस में नहीं थी, जो क्वेश्चंस एग्जांपल्स थी ना। अरे भाई, एक तो बात ये है कि मैं एड्रेस तो कर रहा हूँ कंबाइंड सेक्शन से, LMS पे हैं दो से हिस्से, दोनों सेक्शंस का अलग अलग। तो मुझे ही चेक करना पड़ेगा कि मैंने सारी फाइल्स दोनों क्लास नंबर्स की जो LMS का हिस्सा है उसमें अपलोड की है नहीं की, मैं चेक कर लूँगा। और ना मिले तो मुझे एक वो कर दीजिएगा, क्या नाम है उसका, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया ना आप लोगों को, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर देंगे कि व्हाट इज मिसिंग। Each and every lecture that I discuss, there is a 2, 3, 4, 5, and at times it will be 10 pages. Uh, तो मैं इनमें से हर वर्ड फाइल आपको उस पर शेयर करूंगा। तो अगर कोई मिस हो जाए तो मुझे सिर्फ मैसेज कर देंगे कि भाई फलानी फाइल नहीं मिली। और हर फाइल को आप पहचानेंगे किस से? हेडिंग से, नाम से। अब देखिए नाम मैंने इसका क्या लिखा हुआ है, बाइसेक्शन मेथड, यही नाम है, मगर इसके पीछे 3 लगा हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये तीसरी फाइल है जो मैंने अपलोड की होगी। अगर नहीं की, मिसिंग है कोई, तो पहली होनी चाहिए कोर्स आउटलाइन की, दूसरी होनी चाहिए लोकेटिंग रूट की। नहीं सॉरी, एक बीच में मिस हो गई। कोर्स आउटलाइन अलग होगी, फिर होगी इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल एनालिसिस, एक आध पेज की है वो। फिर नेक्स्ट है लोकेटिंग द रूट, और तीसरी ये है। तो इसी तरह तरतीब से जो है मैं कोशिश करता हूँ आपको फोल्डर दिखा दूँ अपना। Yes, number 1 is course outline. Number 2 is locating root. इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल एनालिसिस जो था वो एक पेज इसमें शामिल नहीं है। इस वक्त मैं तीसरी फाइल पे जा रहा हूँ। ये है वो फाइल जो मैं आपसे शेयर करूंगा, और कोशिश करूंगा ये सारी की सारी आज रात में अपलोड कर दूं। ठीक है,
तो ये चैप्टर है सॉल्विंग नॉन लीनियर इक्वेशंस का। इसके बाद अगला लेक्चर आएगा, उसकी फाइल्स जो हैं वो अलग से शेयर कर दूंगा। राइट, तो बैक टू अवर बाइसेक्शन मेथड। हाँ भाई, हमने बेसिक आइडिया डिस्कस कर लिया था कि इंटरवल ए बी से स्टार्ट करेंगे विद द कंडीशन कि एफ ए और एफ बी के साइन ऑपोजिट हैं। फिर मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे एम। इसका मतलब अब दो इंटरवल हो गए, ए एम और एम बी। फिर हम चेक करेंगे कि एफ ए और एफ एम का साइन ऑपोजिट है या एफ एम और एफ बी का साइन ऑपोजिट है। जो साइन ऑपोजिट है रूट उसमें होगा। जैसे हमारा नया इंटरवल जो होगा, अगर एम से लेके बी तक रूट है तो अब एम एक ही जगह ले लेगा, यानी नया इंटरवल जो है वो मिड पॉइंट जो कि अब ए कहलाएगा ए बी। जो हम इंटरवल को हमेशा ए बी कहेंगे। तो अगर एम बी के दरमियान रूट है तो नया इंटरवल एम की जगह ए बी, और अगर ए एम के दरमियान रूट है तो एम की जगह बी। इस स्ट्रेटजी को हमने एल्गोरिथम की शक्ल दे दी है। एंड दिस इज द एल्गोरिथम दैट यू कैन both consider as a guide for manual calculation as well as the calculations on through programming. You can make a program. So your first step is what? You have to select a function. You have to select A and B. And you have to select this thing. Let me make it bold and italic. How do you read it? Can anybody read this word that I have written as TOL? Toll. Tall. Can anybody guess its abbreviation of what word in English? Termination of limit. Tolerance. Tolerance is a very appropriate word used here because it gives us our level of tolerance कि हम एक repetitive process कब तक करते रहेंगे। बात समझ में आती है ना? हमने कहाँ जाके रुकना है, हमारी बर्दाश्त कहाँ खत्म हो जाएगी। देखें इसका क्या रोल है इस एल्गोरिथम में। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या क्या कंप्यूट करना है? फंक्शन वैल्यू एट ए, फंक्शन वैल्यू एट बी, मिड पॉइंट एंड दिस वे और दिस वे, और फिर मिड पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू। यू आर डूइंग प्रोग्रामिंग और यू आर डूइंग मैनुअल वर्क। आपने एक लाइन में ए बी एफ ए एफ बी एम और एफ एम लिख लेना है या डिस्प्ले कर देना है। इफ यू आर डूइंग प्रोग्रामिंग यू विल डिस्प्ले दिस इन वन लाइन। एंड देन तुम जब कोई चीज़ डिस्प्ले करते हो तो फिर लाइन चेंज करने के तुम कोड डालते हो कोई उसमें, सो दैट अगली दफ़ा जब कैलकुलेशन करो तो वो अगली लाइन में आए। ना स्टेप 3 इज द लॉजिकल स्टेप। अगर एफ एम इज इक्वल टू 0 है तो आपको रूट मिल गया, एम इज द रूट, एम इज एन एग्जैक्ट रूट और आप टर्मिनेट कर देंगे। सो यू कम आउट ऑफ दिस प्रोग्राम। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी एफ एम इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो अब दो कंडीशन है, या तो एफ ए इंटू एफ एम नेगेटिव होगा या एफ एम इंटू एफ बी नेगेटिव होगा। अगर एफ ए इंटू एफ एम नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि अब मैं ए बी और एम इन तीन में से बी को छोड़ दूंगा क्योंकि एम बीच में है। ए और एम जो है मेरे असल में नया इंटरवल है जिसमें कि रूट एग्जिस्ट करता है। तो आई विल रीनेम एम टू बी और मूव द वैल्यू ऑफ एम टू बी। अगर एफ ए इंटू एफ एम नेगेटिव नहीं है तो डेफिनेटली एफ एम इंटू एफ बी नेगेटिव होगा। उस केस में हम एम को ए कह देंगे। अब हमारा नया इंटरवल ए बी जो है वो आधा रह गया पिछले इंटरवल के मुकाबले में। तो थर्ड स्टेप, लॉजिकल स्टेप, जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि मिड पॉइंट रूट तो नहीं है। अगर मिड पॉइंट रूट है तो हमने डिस्प्ले किया कि एम इज एग्जैक्ट और टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद हमने ये चेक किया कि अगर एफ एम 0 नहीं है तो एल्स इफ में क्या है, या तो
रूट ए और एम के दरमियान होगा या एम और बी के दरमियान होगा। अगर ए और एम के दरमियान रूट है तो अब एम जो है उसको बी कह दिया हमने, और अगर एम और बी के दरमियान रूट है तो ए जो है उसको एम। ए हमेशा लेफ्ट हैंड पॉइंट और बी हमेशा राइट हैंड पॉइंट। एंड फोर्थ स्टेप जिसमें आपको टॉलरेंस का असल मतलब समझ में आएगा। अगर मेरे जो करंट इंटरवल है दैट कंटेन्स अ रूट ए और बी, मैं ऊपर से जितना भी काम है, अगर मैं 4 दफा करूं, 5 दफा करूं, 6 दफा करूं, तो ए और बी चेंज हो चुके होंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। लेकिन हमें ये पता होगा कि जो भी करंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी है, रूट उनके बीच में है। अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो टॉलरेंस से ज्यादा है, यानी हमारी हमारी बर्दाश्त की हद में है, तो हम रिपीट करेंगे क्या, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, इनफैक्ट स्टेप 4 तक भी आएंगे। लेकिन अगर ए और बी का डिफरेंस हमारी टॉलरेंस से आगे निकल गया, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाउ आई डिफाइन दिस बर्दाश्त, आई डिफाइन दिस टॉलरेंस. Tolerance is a number which tells me how close A and B are currently. For example, अगर A और B के दरमियान डिफरेंस जो है there is some difference disturbance in my internet connection. If I'll say again, if you miss my voice or something else, file will be with you. Let me repeat this step 4 again. This tolerance or TOL is a small number. For example, अगर मेरे पास tolerance मैंने सेट की हुई है in the first step 0.001 और स्टेप 4 में आके मुझे ये पता चलता है कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो 0.001 से बड़ा है, तो मुझे अभी फर्दर काम करना है। लेकिन अगर बड़ा नहीं है, छोटा हो गया है, तो इसका मतलब है ए और बी के दरमियान जो डिफरेंस है वो थर्ड डेसिमल प्लेस पे आ रहा है। अगर टॉलरेंस 0.001 है और ए और बी का डिफरेंस 0.001 से कम हो गया है, तो इसका मतलब है पहले 2 डिजिट्स डेसिमल के बाद दोनों के सेम है। तो इसका मतलब है कि ए और बी में या मिड पॉइंट को मैं रूट एक्ज्यूम कर सकता हूँ with an accuracy of 2 decimal places. So if tolerance is achieved, then display M midpoint as the root correct to desired accuracy and terminate. Note few things. Bisection method always converge. That is the best thing about bisection method, and this quality is only with this bisection method. कोई और मेथड ऐसा नहीं है जो हर सूरत में कन्वर्ज करे। बाइसेक्शन मेथड सिर्फ एक कंडीशन पे काम करता है कि जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो बिटवीन द इंटरवल ए एंड बी, और एफ ए और एफ बी के साइंस ऑपोजिट हो। ये 2 कंडीशंस हैं। बाइसेक्शन मेथड डेफिनेटली तुम्हें रिजल्ट देगा, कितना एक्यूरेट रिजल्ट जितना चाहो। 5 डेसिमल का चाहोगे 20-25 आइटरेशंस करनी पड़ेंगी, 100 डेसिमल चाहोगे कई हजार आइटरेशन करनी पड़ेंगी, मगर 100 डेसिमल किसको चाहिए। असल बात तो ये है कि हम कॉन्सेप्ट समझें। So bisection method always converges to a root under the conditions it is used. Convergence is slow in bisection method. That is a disadvantage of the method. It can be predetermined that to attain an accuracy of n decimal places, how many iterations, repetition of our loop is required. ये हम पहले से मालूम कर सकते हैं। मुझे 5 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी चाहिए, तो डिपेंडिंग ऑन स्टार्टिंग ए बी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी देर में मिलेगी।
तो ये स्ट्रेटजी नेक्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स में डिस्कस हुई है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि इस स्ट्रेटजी को मैं बाद में डिस्कस करूँ। दिस इज द अल्टीमेट फार्मूला। डी डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी चाहिए, ए नॉट बी नॉट से आपने स्टार्ट किया है, ये फॉर्मूला है। इस नंबर से कम आइट्रेशंस चाहिए होंगी, बट आई विल डिस्क्राइब दिस होल लॉजिक आफ्टर दिस एग्जाम्पल, which demonstrate the algorithm that we have just we have to find a positive root of the equation cos x minus e power minus x is equal to 0. Okay. A, B, FA, FB, M, and FM. Whether you are working manually or you are using a program, आपने ये headings generate करनी है पहले. I is the count of iteration. पहली iteration हम 0 कहते हैं. The process of locating root tells that a root lies between 1 and 2. ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, जैसे अभी मैंने आपको सिखाया है रूट लोकेट करने का, ठीक है। तो उससे हमें ये पता चल चुका है कि रूट जो है 1 और 2 के दरमियान है, और एक और रूट 4 और 5 के दरमियान है। तो लेट अस फाइंड बोथ दीज करेक्ट टू 4 डेसिमल। तो एक रूट 1 और 2 के दरमियान है, तो एफ ऑफ 1 हमने कैलकुलेट किया, एफ ऑफ 2 कैलकुलेट किया, मिड पॉइंट कैलकुलेट किया, जो मिड पॉइंट आ गया उस पर फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट की। देखो एफ ए और एफ बी के साइन ऑपोजिट हैं। अब गौर से देखो, एफ ए, एफ बी और एफ एम, एफ ए और एफ एम के साइन ऑपोजिट हैं, एफ बी और एफ एम के साइन सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट ए और एम के बीच में है, एम और बी के बीच में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अब नया इंटरवल मेरा ए एम होना चाहिए। ए एम होने का मतलब क्या हुआ, ए तो ए ही 1 रहेगा और बी की जगह एम आ जाएगा 1.5। तो मैंने बी की जगह 1.5 लिख दिया। फिर से एफ ए कैलकुलेट किया, फिर से एफ बी कैलकुलेट किया, फिर से मिड पॉइंट कैलकुलेट किया, और फिर से मिड पॉइंट पर हमने फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट की। अब इस सेकेंड लाइन में एफ ए पॉजिटिव है, एफ बी नेगेटिव है और एफ एम पॉजिटिव आ गया। अब एफ ए और एफ एम पॉजिटिव है, लिहाजा इन दोनों के दरमियान रूट नहीं हो सकता। एफ बी और एफ एम के दरमियान रूट होगा, क्योंकि एफ बी और एफ एम की साइंस अपोजिट हैं। तो इंटरवल, अब नया इंटरवल ए से एम होने के बजाय एम से बी तक होगा, यानी राइट साइड पार्ट। तो अब अगली आइट्रेशन में हम ए की जगह 1.25 रखेंगे और बी को 1.5 रहने देंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, वुड यू लाइक मी टू डेमोन्स्ट्रेट दिस इन कैलकुलस शीट, कैलकुलस कह रहा हूँ, एक्सेल शीट। ये कंप्यूटेशन एक्सेल शीट में करके दिखाऊं आपको? हेलो। Yes, sir. Okay. Let me copy this function and go to the Excel sheet where I paste this function, just to remember that I am working with what function. And let me share this new screen of Excel. Where is Excel? Here it is. Can you see the Excel sheet? Can you? Yes, Okay. sir. Okay. Yes. Now Sir. I'm putting headings. I, the iteration number, A, the left hand point, B, the right hand point. ये क्या हो गया? F, A, F, B, then midpoint, then function value
at midpoint. So my first iteration, 0, the root lies between 1 and 2. What is FA? I have now to fill this cell with the formula, and the formula is here. So is equal to cos bracket. From where do I get the x value? This is FA. So x value is 1. So I take it from what cell? H12. H12 minus EXT bracket minus x, and x is H12. So FA has been calculated. अच्छा, मजे की बात एक्सेल में ये है कि अगर मैं इस सेल को कॉपी करूं और अगले सेल में पेस्ट कर दूं, तो नोट दैट इस सेल में H12 पे कैलकुलेशन हुई हुई है और इस सेल में I12 पे, यानी उसने खुद ब खुद अगले, क्योंकि इस सेल में और इस सेल में एक सेल का डिफरेंस था, तो इस सेल में और इस सेल में भी एक सेल का डिफरेंस रहेगा, ये ऑटोमेटिकली B पे कैलकुलेट कर लेगा. And then I go for the midpoint, and midpoint is what? A plus B. A is in H12 plus B, and B is in I12, bracket closed, divided by 2. So I have got the midpoint, and then I have to fill this again with the formula, because यहाँ जो मैंने फंक्शन कैलकुलेट किया था एक सेल के डिफरेंस से किया था, तो यहाँ तो वो खुद ब खुद आ गया, लेकिन यहाँ से अगर मैं कॉपी करूंगा तो वो एक सेल पीछे से कैलकुलेट करेगा, लिहाजा मुझे दोबारा सेल फिल करना पड़ेगा. कॉस ऑफ, मुझे अब इस m की वैल्यू 1.5 पे कैलकुलेशन करनी है, तो कॉस ऑफ L12 माइनस EXP bracket minus L12 bracket close, and the calculation is done. Now A पर फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव थी, B पर फंक्शन वैल्यू नेगेटिव आई. हमने कहा रूट 1 और 2 के दरमियान है. फिर हमने मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट की. अब 3 फंक्शन वैल्यूज हैं हमारे पास, FA, FB, FM. इनमें ऑपोजिट साइन FA और FM का है, लिहाजा A तो वही रहेगा जो पहले था, B चेंज होगा क्योंकि FA, FM इनके साइन ऑपोजिट है, लिहाजा लेफ्ट हैंड जो है वो 1 ही रहेगा, राइट हैंड जो है वो M हो जाएगा, लिहाजा 1.5. अच्छा, एक चीज ये कि आइटरेशन काउंट जो है वो उसके लिए हम अक्सर बेशतर ये करते हैं कि 12 + 1 एक काउंटर की तरह से +1 एक काउंटर की तरह से ये हमने बढ़ा दिया और इस काउंटर को जितना इंक्रीज करना कर लिया. Okay, now we have filled cells from here up to here by formulas, and these formulas were used on A is equal to 1 and B is equal to 2. अगर मैं इन तमाम सर A और B की वैल्यूज कहाँ से आई? Let me go back. Find a positive root of the equation this. The process of locating root tells that a root lies between 1 and 2. यहाँ मैंने आपसे कहा था कि इस इक्वेशन का रूट लोकेट कर लीजिएगा खुद ही, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ कि आपने मुख्तलिफ एक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 पर इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. उस प्रोसेस से ये पता चल चुका है, मैंने नहीं किया, मैंने आपके ऊपर छोड़ा कि आप कीजिए, चेक कीजिए. एक 1 और 2 के दरमियान रूट है इसका और एक 4 और 5 के दरमियान है. ओके, तो अभी हम 1 और 2 के दरमियान जो रूट है वो तलाश कर रहे हैं. अब पता लगेगा कहाँ से आई ये वैल्यूज, तो आपने ये तलाश करनी है खुद. बैक टू एक्सेल शीट.
मैं ये कह रहा था कि ए और बी की वैल्यू हमें ये पहले से पता है कि रूट 1 और 2 के दरमियान है। हमने एफ ए, एफ बी, मिड पॉइंट, एफ एम यानी फंक्शन वैल्यू एट मिड पॉइंट, इन सब के फॉर्मूले फीड किए हुए हैं जो कि अब काम कर रहे हैं इन दो सेल्स के लिए। अगर मैं इसको कॉपी ड्रैग कर दूं तो ये 1 और 1.5 के रिजल्ट आ गए। 1 पे फंक्शन वैल्यू वही है जो पहले थी। अब बी जो है वो चेंज हो चुका 1.5 पे फंक्शन वैल्यू नेगेटिव है। 1 और 1.5 का मिड पॉइंट जो है 1.25 है और 1.25 पे फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव। लुक एट द थ्री फंक्शन वैल्यूज एफ ए, एफ बी एंड एफ एम। किन दो की वैल्यूज ऑपोजिट साइन की हैं? एफ एम और एफ बी। तो हमारा नया इंटरवल जो है जो रूट कंटेन करता है वो एम से लेके बी तक है। तो लेफ्ट वाली वैल्यू जो है एम होनी चाहिए और राइट वाली वैल्यू जो है वो बी होनी चाहिए। तो लेफ्ट वाली वैल्यू हम कर देते हैं 1.25 और राइट वाली वैल्यू सर आप स्पीक करिए, आपने क्या बोला? ये लुक एट दिस लाइन, एफ ए पॉजिटिव, एफ बी नेगेटिव और एफ एम पॉजिटिव। तो एफ ए और एफ एम पॉजिटिव है, लिहाजा रूट इनके दरमियान नहीं हो सकते। रूट होने की जरूरत के लिए क्या जरूरी है कि फंक्शन वैल्यूज ऑपोजिट साइन की हों। तो एफ बी और एफ एम जो है वो ऑपोजिट साइन के हैं। इसका मतलब है रूट जो है वो अब एम और बी के दरमियान है। तो अब हमारे पास एम 1.5 है जो कि लेफ्ट वाली वैल्यू होगी और बी जो है एम जो है 1.25 है, ये हमारी लेफ्ट वैल्यू होगी और एफ बी में जो कि नेगेटिव है ऑपोजिट साइन है तो बी 1.5 ही रहेगा। Again, from here to here, we have formulas feed it which work for a is equal to 1 and b is equal to 1.5. अगर मैं इसको कॉपी ड्रैग कर दूं नीचे तो ये कैलकुलेशंस आ जाएंगी किसके लिए, a is equal to 1.25 और b is equal to 1.5 के लिए। दिस टाइम ये जब हम एक सेट ऑफ कैलकुलेशंस करते हैं, दिस इज वन आइट्रेशन। अब ये तीसरी आइट्रेशन है जिसका आई वैल्यू 2 है। अब जो मेरे पास फंक्शन वैल्यूज हैं उन पर गौर कीजिए, एफ ए, एफ बी एंड एफ एम। एफ ए और एफ एम ऑपोजिट साइन है। इसमें रूट किसमें होगा? रूट करंट ए और एम के दरमियान। एफ बी और एफ एम सेम साइन है, लिहाजा एम और बी के दरमियान रूट नहीं हो सकता। रूट होगा करंट ए और करंट एम के दरमियान। करंट ए वो ये जो पहले था लेफ्ट वाला और बीच वाला जी सही। जो हम लोग जो है ना वो चेंज ऑफ साइन जो है ना वो देख रहे हैं कि हम एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो ये हम लोग एक्सेल में हम लोग डायरेक्टली नहीं फीड कर सकते इफ कंडीशन के साथ कि वाह जो है ना वो मिड पॉइंट कर दें। वाह। देखो बात ये है कि मैं ये कहा करता हूं कि मैथमेटिशियंस आर लेजी। डू यू एग्री? आई रीस्टेट, मैथमेटिशियंस आर लेजी। सही बात है सर, सही बात। क्यों क्यों? The reason सर is हर चीज में आसानियां निकालते स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करना। because they are smart. They are smart. They make things simpler and easy. और ये जो तुमने अभी लॉजिक छेड़ी है कि ये एक्सेल शीट में खुद ब खुद ये एडजस्ट हो जाए, यही लॉजिक तुम्हें अपने प्रोग्राम में बनानी पड़ेगी, जो कि मैंने एल्गोरिथम में डिस्कस कर ली है। वही लॉजिक है। एक्सेल में कैसे इम्प्लीमेंट होती है ये तुम खुद तलाश करो, मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो मैं बाइसेक्शन मेथड समझा रहा हूँ और एक्सेल शीट ठीक है बता रहा हूँ, लेकिन एक्सेल शीट एक ऐसी चीज है जिसको जितना तुम एक्सप्लोर करोगे उतना मजा आएगा। प्रोग्रामिंग तो में आती है, अब प्रोग्रामिंग करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
प्रोग्रामिंग से यही रिजल्ट क्रिएट करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बल्कि ये समझ लो कि मैं समझूंगा कि हाँ, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ तो कुछ हासिल हो रहा है मुझे, क्योंकि आगे आने वाले जो प्रोग्रामिंग एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा मज़ेदार है। ये तो बहुत सिंपल है। Anyways, in this way we keep on building this Excel sheet, and I have the same Excel sheet copied from there. मैंने उसको पूरा ब्रैकेट करके, and यार ये इंटरनेट कनेक्शन फिर गड़बड़ हो रहा है। वापस आ गया। So this whole table of results is made in Excel, and how many iterations? 14 iterations are given there. Oh no. Okay. So we see that after 13 iterations, हमारे पास m की वैल्यू क्या है? देखो, last m is 1.292664 and previous m is 1.292603. So 4 डेसिमल तक सेम है, 5वें डेसिमल पे डिफरेंस आ रहा है। अगर आपने और आगे बढ़ना है तो 4 और iterations कीजिए। Thus after 13 iterations, this is required root correct to 4 decimal places. बिल्कुल ऐसे ही हमने 4 और 5 के दरमियान रूट तलाश किया और देखा कि m की वैल्यू इन आफ्टर 14 iterations 4.721252 और आफ्टर 15 iterations 4.721283। तो अगेन 4 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी हमें मिल रही है। ठीक है जी, दिस इज द बाइसेक्शन मेथड। दिस इज हाउ टू use bisection method to solve a problem, given that you have suitable values of the starting interval AB such that FA and FB are of opposite sign, and then you start this process. And note few things in this table. जरा गौर से देखो भाई, कम से कम 50% स्टूडेंट्स आर देयर और बाकी जो हैं इसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे। इस टेबल की शक्ल पे गौर करो। A and B are continuously changing according to the signs of FA, FB and FM. एक चीज, लेकिन अगर पहली कैलकुलेशन में FA नेगेटिव है तो FA हमेशा नेगेटिव रहेगा अगर तुम सही लॉजिक इस्तेमाल करते रहो। अगर पहली वैल्यू ऑफ FB पॉजिटिव है तो ये थ्रू आउट पॉजिटिव रहेगी अगर तुम सही लॉजिक इस्तेमाल करते रहो। M की वैल्यू जो भी है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ रिजल्ट्स such that the difference between last m and new m is becoming smaller and smaller, and that is my tolerance. The last and the second last values differ only in the 5th place, so we can say that the difference between the last two values of m is less than 0.000301, उससे कम है। What's the difference between these two last values? 0.4 zeros के बाद 3, तो 3 zeros के बाद 1 लगाऊं तो उससे कम ही है ना ये डिफरेंस। तो हमारे पास 4 डेसिमल तक करेक्ट रिजल्ट मिल गया हमको। FM पे गौर करो, लास्ट जिस पे मैं क्लेम कर रहा हूं कि रूट आ रहा है। If your logic is correct, if your working is correct, if you're doing everything correct, FM will keep on decreasing. This is midpoint of the interval in which you are working that contains the root, and that is coming closer and closer to the root. 0.22, 0.02, 0.09, 0.03, 0.002 is slightly increased here, then start decreasing again, decrease, 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 10 to the power minus 6 पे चला गया। So these are the patterns that you need to track down while developing this table. अगर ये सारे patterns मौजूद हैं तो आपकी logic सही है और आपका result सही है। Okay? जो कुछ मैंने अभी टेबल की प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, इनको रिकॉर्डिंग में दोबारा सुनना और जहन में बिठा लेना।
Now that terminates the discussion on what bisection method is and how we can use it to find a root of a given equation f(x) is equal to 0 between a and b such that fa and fb have opposite sign. Now I go back to what I missed in the discussion. सर 13 आइटरेशंस करना जरूरी है अच्छा सवाल और है, भी कर अच्छा सवाल है। सर मैंने ये जो नोट डिस्कस किया था कि it can be predetermined that to attain an accuracy of so many decimal places, how many iterations will be required. तो हमने देखा 13-14 iterations में हमें 4 decimal places की accuracy मिल रही है। तो आपने कहा कि 13-14 decimal iterations करना जरूरी है। इस सवाल का जवाब जो है वो मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है, तफसीली जवाब है, इसलिए मैंने कहा आपको पहले मेथड सिखा दूं, फिर जरा ये जो क्वेश्चन आपने रेज किया है जो कि एक नेचुरल क्वेश्चन है, और चूंकि मैथमेटिशियंस आर लेजी, दे आर बिकॉज दे आर स्मार्ट एंड वाइस वर्सा, दे आर स्मार्ट बिकॉज दे आर लेजी। इसीलिए ऐसे लोगों को बड़े बड़े लोग पसंद करते हैं जो कि लेजी हों, क्योंकि लेजी लोग जो है वो आसानी तलाश करते हैं और आसानी से सोल्यूशन हासिल करते हैं। Now look at this logic. सर जी, जो लास्ट एग्जांपल किया हमने उसमें टॉलरेंस क्या थी? हमने इन दोनों एग्जाम्पल में टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ नजरों से देखा है। नजरों से देखा है कि पिछला एम और नया एम जो है इन कितने डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट सेम है। तो हमने टॉलरेंस का इस्तेमाल ऊपर दिए हुए एल्गोरिथम में किया है, क्योंकि जब आप प्रोग्राम रन कर रहे होंगे, भले से आप जब आप इस एल्गोरिथम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, आप लाइन डिस्प्ले करते रहें, लेकिन प्रोसेस को स्टॉप करना आपके इख्तियार में नहीं होगा। उसको स्टॉप करने के लिए आपको कंडीशन चाहिए होगी, वहां टॉलरेंस इस्तेमाल करना जरूरी होगा। व्हेन आई एम डूइंग अ प्रॉब्लम मैनुअली और ऑन एक्सेल, तो मुझे देखना ये कि पिछला एम और नया एम इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, या करंट ए और करंट बी के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है। 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक सेम है, तो उसकी बुनियाद पर मैं मैनुअल कैलकुलेशन या एक्सेल कैलकुलेशन रोकूंगा। वो जो टॉलरेंस है वो मैंने इस्तेमाल करनी कहाँ, जब मैं प्रोग्रामिंग करूंगा। तो मुझे पहले से बताना पड़ेगा। अगर जनरेटर चलाना चाहते चला लें आप लोग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइट चली गई है तो घर वाले जरा थोड़ा परेशान हो रहे थे कि शोर होगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चला लें। देख रहे होंगे मेरा जी। जब प्रोग्राम करते वक्त हम टॉलरेंस लेवल डिसाइड करेंगे, वो उस पे डिसाइड करेंगे कितने डेसिमल प्लेसेस पे उसे सेम चाहिए। जी एग्जैक्टली यानी लास्ट मिड पॉइंट और यानी प्रीवियस मिड पॉइंट और करंट मिड पॉइंट या width of the current interval AB, उसके ऊपर टॉलरेंस इस्तेमाल करेंगे। हम फंक्शन वैल्यू भी टॉलरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट मी डिस्कस दिस पॉइंट अगेन। आपने जो अभी रेज किया पॉइंट, मैं इसके ऊपर भी टॉलरेंस इस्तेमाल कर सकता हूँ। फंक्शन की वैल्यू 10 to the power -5 यानी 0.00004 जीरोस के बाद 221, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू तकरीबन 0 हो चुकी है। मैं इस पर भी टॉलरेंस इस्तेमाल कर सकता हूँ। डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस एम एंड न्यू एम, इस पर भी टॉलरेंस इस्तेमाल कर सकता हूँ। डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, हाँ बेहतर ये होगा कि ए बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 जो कि एम ही है, इस पर टॉलरेंस इस्तेमाल करें तो आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस करेक्ट कितने हैं पता चल जाएगा। सो देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज। कुछ लोग फंक्शन वैल्यू पर टॉलरेंस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आप ये लॉजिक करेक्टली इस्तेमाल कर रहे होंगे मैनुअली एक्सेल शीट पर या प्रोग्रामिंग में, तो फंक्शन वैल्यू जो है वो 0 की तरफ जाएगी। एम का जो कॉलम है वो रूट की तरफ जाएगा। अब एम की लास्ट 2 वैल्यू से पता चलेगा कि
रूट के कितने करीब पहुंच चुके हैं। 4 डेसिमल तक सेम है m की वैल्यू पिछली और नई, इसका मतलब हम रूट के कितने करीब हैं कम से कम। हम अगर ये रूट एक्सेप्ट कर लें तो इट इज करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। जी जनाब, I have few minutes so I can discuss this. We explore further methods of root finding before we proceed further into the methods of root finding. Let us revisit the bisection method and address the issue that how can we find the number of iterations required to attain a certain accuracy for the root. And we start with an interval a0 b0. Starting interval को हम a0 b0 कह रहे हैं. That contains a root x is equal to r of a non-linear equation f x equal to 0. अब a0 ये है, b0 ये है, रूट यहाँ कहीं है, ब्लू पॉइंट. ओके, मैं बाइसेक्शन मेथड में क्या करता हूँ, मिड पॉइंट कैलकुलेट करता हूँ. मिड पॉइंट इज राइट इन जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. मिड पॉइंट कहाँ है, वो a0 और b0 के बिल्कुल बीच में है और हमने अज्यूम किया हुआ कि रूट यहाँ है. तो हम ये देखते हैं कि रूट में और मिड पॉइंट में जो डिस्टेंस है वो a0 और b0 में जो डिस्टेंस है उससे कम होगा. रूट विल बी क्लोजर टू द मिड पॉइंट ऑलवेज कंपेयर टू a0, distance between a0 and b0. As the root r is between a0 and m0, the new interval is a0 m0. इस a0 m0 को मैं a1 b1 कह रहा हूं, the next interval, to make things clear. अब अगर आप गौर करें, ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, रूट यहां है और नया मिड पॉइंट यहां है. लेकिन नया इंटरवल a1 b1 जो है वो पिछले इंटरवल का आधा है, half of b0 minus a0. So distance between r and m1, new midpoint, is less than the difference between a1 and b1, and the difference between a1 and b1 is half the difference between the original interval. अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई. Similarly, the next midpoint, अब ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, इनका मिड पॉइंट जो है वो r के फर्दर क्लोज होगा. So the next midpoint will have this property कि r और m0 m2 के दरमियान जो डिफरेंस है वो ओरिजिनल के 1/4 के बराबर होगा. ओरिजिनल क्या? ओरिजिनल साइज ऑफ द इंटरवल a0 से b0. तो पहला मिड पॉइंट से रूट जो है वो हाफ द स्टार्टिंग इंटरवल होगा और रूट का डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड मिड पॉइंट विल बी क्वार्टर ऑफ द ओरिजिनल इंटरवल. अगला 1/8 होगा, उससे अगला 1/16 होगा, उससे अगला 1 so on 2 की पावर चल रही है. Thus the nth midpoint r minus mn will be 1/2 raised to power n times the original size of the interval. Now इस inequality को ये जो inequality है, distance between nth midpoint and root is less than 1/2 raised to power n into size of the original interval. I can rewrite like this. क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, लिहाजा मैं inequalities का अलजेब्रा से खेल सकता हूं. Once I've got this, अब मैं तय करता हूं कि मेरा टॉलरेंस कितना है. मेरा टॉलरेंस जो होगा ना, that will be always something like let me write it here. For example, tolerance मैं कहता हूं is equal to 0.0001. साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखूंगा इसको? This is 10 to the power what? Can anybody tell me?
-10 to the power -4. Oh, minus नहीं, -4. Oh, yes. 10 to the power -4. So I write down this is equal to 10 to the power -4. Okay. So my tolerance will always be defined in similar term, 10 to the power -d. ये जो -4 है, अगर मेरा टॉलरेंस जो है अचीव हो चुकी, इसका मतलब नए m में और पिछले m में इससे कम डिफरेंस है। जब इससे कम डिफरेंस है तो नया और पिछला m जो है 4 डेसिमल तक सेम है। तो इसका मतलब d डेसिमल एक्यूरेसी के लिए मुझे टॉलरेंस की वैल्यू 10 टू द पावर -d रखना पड़ेगी। नाउ यू गॉट द पॉइंट कि तुम जब प्रोग्राम करोगे तो टॉलरेंस कैसे इस्तेमाल करोगे, कितने डेसिमल तक चाहिए, तो उतने डेसिमल 0.0 के बाद 0 पॉइंट के बाद जितने डेसिमल की एक्यूरेसी चाहिए उतने डिजिट्स के बाद 1 लगा दो, बाकी सारे जीरो से पहले। तो दिस r minus mn is equal to tolerance and this. तो मैं r minus mn की जगह 10 to the power -d रख देता हूँ, जिसको सिंप्लीफाई करूंगा। ये अलजेब्रा तुम लोग खुद देख लेना, log base 10 को इस्तेमाल करो, log n करो, अल्टीमेटली ये फॉर्मूला बनता है। इसके अंदर r माइनस mn यानी nth मिड पॉइंट की जगह टॉलरेंस इन द फॉर्म ऑफ 10 टू द पावर -d रखा, जिससे ये आया, ये ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर d। इसको सॉल्व किया n के लिए, ये n के लिए, तो लॉग इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेचुरल लॉग इस्तेमाल करो तो बेहतर है। अल्टीमेटली ये मेरे पास रिलेशन आ गई। इस रिलेशन पर गौर करो, हम जो इंटरवल इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जाम्पल में 1 से 2 था, 3 से 4 था, तो और ये जो A0 B0 है ये स्टार्टिंग है। आमतौर पे स्टार्टिंग वैल्यूज जो है इनके दरमियान डिफरेंस 1 होता है, तो log 1 जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये रिलेशन और सिंपल हो जाएगी। सिंपली नंबर ऑफ आइटरेशंस रिक्वायर्ड इज लेस देन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एक्यूरेसी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय log of 2। तो हमने कहा कि नंबर ऑफ आइटरेशंस कितने होने चाहिए। इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आती है, द फॉर्मूला इज नॉट वेरी एग्जैक्ट। कुछ लोग जो हैं इसमें जहां मैंने n इस्तेमाल किया वहाँ n+1 इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तो हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है वो 1 से शुरू होता है, लेकिन हमने जो आइटरेशंस काउंट करनी शुरू की हैं वो 0 से की हैं। इस वजह से लोग n+1 इस्तेमाल करते हैं। जब n+1 इस्तेमाल करेंगे तो इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। एनीवेज, हमने 5 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी के लिए अगर कैलकुलेशन करनी है विद a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 5, तो हम देखते हैं कि n शुड बी लेस देन 16.6 यानी 16 डेसिमल प्लेसेस की, जबकि हमने जो काम किया था d इक्वल टू 4 के लिए किया था। सो दिस इज द लॉजिक एंड दिस फैसिलिटी इज ओनली अवेलेबल इन बाइसेक्शन मेथड। किसी और मेथड में हम पहले से नहीं मालूम कर सकते कि कितनी आइटरेशंस में हमें कैसी एक्यूरेसी नसीब होगी। और ये जो नोट यहाँ लिखे हुए हैं इसको भी मैं बोल्ड कर दूं। These are special properties of bisection method. काफी है सर आज के लिए। जी मुझे मालूम है, खत्म करने में आप परेशान ना हो, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा मैं आपको यार, जालिम आदमी नहीं हूं मैं यार। इसकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही इस वक्त से। ये 3 चीजें बड़ी अहम है कि बाइसेक्शन मेथड ऑलवेज कन्वर्जेस टू अ रूट अंडर द कंडीशंस गिवन। Convergence is slow in bisection method. That's a disadvantage. First is that advantage कि हमेशा converge करेगा अगर condition suitable है। Disadvantage एक slow है।
अगेन एक एडवांटेज है कि आप पहले से मालूम कर सकते हैं कि इतने ऐसे डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी के लिए आपको कितना चाहिए आइट्रेशंस, कितनी दफ़ा आपको रिपीट करना है प्रोसेस. So with this remark, I terminate today's session, and inshallah we'll meet day after tomorrow again. With that, Allah Hafiz, keep yourself safe. अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. मेरी दुआएं बहुत सारी. Thank you. Allah Hafiz.